Yes, good morning everybody. I'm Rakesh Yadav. Today I am telling you a poem Kavi. It is designed to ask of a son the caste to which he belongs. This poem which is composed by Kavi. Have you heard the name of Kavi? In Hindi Sahitya, Hindi literature. But this poem Jasna Sanskrit, it is prescribed in Shastri second year in English literature. We are going to discuss the introduction to the Kavi, and after that we will discuss, read the stanza of the poem Jasna Sanskrit. We know about the Kavi. Kavi was completely illiterate person. However, he became very philosophical thinker in Hindi Sahitya and English literature and Urdu literature. Jaat Ka Pucho Sant ki poem, which was composed and which was the thought of Kavi, but Rabindranath Tagore translated Hindi, Urdu into English language. विद्यार्थियों, कवि ने जो कविता ये लिखी थी जात का पुछो संत की, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया था. But that was, we should know when and where was Kavi born. Some people say that there is no fixed date of his birth, place and birthplace. However, some people consider he was born in 14th century 40. He was born, इसका जन्म बताते हैं 1440 के अंदर बनारस के अंदर हुआ, and 1518 he died in 1518. Died in 1518 गोरखपुर, in गोरखपुर. गोरखपुर में तो इनकी मृत्यु हुई थी और बनारस में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था. Some people say that, but there is no fixed date when and where was Kavi born. We do not know the fixed date, but some people say that he was a poor weaver. Some people say that he was a Hindu, and some people say that he was a Muslim. There is many misconceptions, भ्रांतियां हैं बच्चों के अंदर कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन हम ये मानते हैं कि 1440 के अंदर इनका जन्म बनारस के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 के अंदर गोरखपुर में हुई थी. He was 78 years old person. This poem, which is composed by Kavi. He was completely illiterate person. He was completely illiterate person. It is said that he was born of a Brahmin woman, Brahmin widow woman. Some people, it is said that ऐसा कहा जाता है, he was born in Brahmin woman. He was brought up by a Muslim family. इसका जो पालन पोषण कभी का हुआ था, was brought up in Muslim family. मुस्लिम फैमिली के अंदर इसका ब्रिंगअप हुआ था. ब्रिंगअप, ब्रॉट अप. ब्रिंगअप का मतलब होता है लालन पालन. एंड ही वाज बोर्न ऑफ ए ब्राह्मण वुमेन, विडो वुमेन. ब्राह्मण विडो वुमेन. ब्राह्मण विडो वुमेन के अंदर इसका जन्म हुआ था और मुस्लिम परिवार में इसका पालन पोषण हुआ था. He was brought up and he was a weaver by profession. और बताते हैं, और ये एक दुल्हा के यहाँ इसका क्या था, as a profession. As a profession he chose a weaver. दुल्हा का मतलब खटिक करती होती ना, जिसको बोलते हैं, उसमें एक धंधे के रूप में इसको अपनाया.
तो बताइए, he was Hindu and Muslim? We cannot say that. He was Hindu and Muslim. There is a story which is circulated in our society. We know that one day it is said that one day Kabir was expired and Hindu and Muslim began to fight each other for their dead body. हिंदू ने कहा हम इस डेड बॉडी को जलाएंगे और मुस्लिम ने कहा हम उसका दफनाएंगे. Both began to quarrel and fighting each other. दोनों लड़ने लगे. Suddenly a voice came in the sky. आकाश से एक आवाज आई, don't fight each other. Go ahead, आगे बढ़ो, देखो and look at. There were some flowers. The dead body had changed into flowers. बताते हैं कि उनकी डेड बॉडी थी फ्लावर में चेंज हो गई थी. And Hindu and Muslim came there. They saw, they were very wonderful to see it, and they divided because it was a dispute matter. Dispute matter था, and Hindu and Muslim both took half and half flowers. और उन्होंने आधे आधे फूल वसूल लिए और वो बातें क्या कर रही थी. ऐसा लोग कहते हैं कि उसकी डेड बॉडी फूलों में कन्वर्ट हो गई थी और हिंदू और मुस्लिम का जो झगड़ा था, उनका जो डिस्प्यूट मैटर था, उस मैटर को कभी ने क्या कर दिया था, शांत कर दिया था. We can say that he had a great faith in God. He used to say that all men are equal before the eyes of God. There is no discrimination between upper caste and lower caste. All castes are equal before the eyes of God. वो ये कहा करते थे, भगवान की दृष्टि में सभी लोग बच्चों कहते हैं बराबर है. There is no discrimination. कोई भेदभाव नहीं है उनके अंदर. God loves all men equal. ये लाइन आपने मिल्टन की भी सुनी होगी. God loves all men equal. God की दृष्टि में बच्चों सबको क्या है, बराबर है. There is no discrimination. कोई भी भेदभाव उसके अंदर नहीं. तो there are many works which is famous and popular in Hindi and English literature. Basically, we know that he was a Hindi literature poet. Kabir was a great religious reformer. Millions of Hindus are Kabir fans. Okay? His songs are very wonderful. His main work of Kabir Bidak. Kabir Bidak is most major work which is very popular major work Kabir Bidak. बच्चों आपने कबीर बिदक का नाम सुना होगा. ये केवल कंपटीशन में पूछा गया है. कबीर बिदक किसका ग्रंथ था, तो ये कबीर का ही था. Kabir wrote a Padavari and Kabir Bidak. It is composed his work in Hindi, but at the same time used Urdu, Farsi and Sanskrit words. He mostly used Hindi, Urdu, Farsi and Sanskrit words also used in his collection in his work. This poem, Jatra Pucho Santaki, which was translated by रविंद्रनाथ टैगोर. और ये जो कविता है जो हमारे कोर्स के अंदर है, ये कबीर के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसका ट्रांसलेशन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था. ठीक है, तो देखिए कितना इसने एक ग्रेट प्रोफेट था, ये मसीहा था हमारे सोसाइटी के अंदर, जिसने हिंदू और मुस्लिम को लड़ने नहीं दिया एंड गेव ए मैसेज और एक संदेश दिया. वी शुड हैव फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. हमारे अंदर मानवता की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए. और मुस्लिम ही वॉज अपोज, वो विरुद्ध थे. द यूजलेस रिट ऑफ बोथ रिलीजियस, ही वॉज अपोज मेजरली ऑफ द कास्ट सिस्टम अमंग द हिंदूज. ही वॉज कंप्लीटली अपोज, विरोधी थे. हिंदू और मुस्लिम के बीच जो लड़ाइयां थी, जो डिस्प्यूट था, उसके वो क्या थे, अपोज, विरोधी थे. कबीर एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ कर्म. He adopted the theory of karma. Do your work and believe in God. Your karma, your duty is most important. तुम्हारा कर्तव्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है. इससे व्यक्तियों को अपने कर्म पर ध्यान रखिए. महाभारत में गीता में भी कहा गया था कि व्यक्ति को उसकी गति उसके कर्मों के अंदर होती है. Kabir accepted the theory of karma and idea of a
किया फॉर इस्लाम कबीर एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ वन गुड एंड द इक्विटी ऑफ ऑल मैन एंड द इक्विटी ऑफ ऑल मैन, और सभी व्यक्ति क्या है, समान है। बच्चों अब इसको इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट मैंने आपको बताया है, बट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट इज रीजन टू आस्क ऑफ ए सन द कास्ट टू व्हिच ही बिलोंग्स, द टाइटल इज वेरी एप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट एंड सजेस्टिव। कैसे हमें किसी भी फर्क से जात नहीं पूछनी चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है ना, तो फिर हम उसकी जात क्यों पूछें? क्या जात से व्यक्ति कितना बड़ा होता है? नहीं होता है ना, तो फिर हमें किसी भी व्यक्ति की जात नहीं पूछनी चाहिए। आई एम रीडिंग दिस पॉइंट, प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच इज रिटन इन दिस पॉइंट। इट इज ए नीड टू आस्क ए सन द कास्ट टू व्हिच ही बिलोंग्स। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है to ask of a son the caste to which he belongs. For the priest, the warrior का मतलब होता है योद्धा। योद्धा कौन होते बच्चे? क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय के प्रति कोई अजीब है कि ये क्षत्रिय की स्पेलिंग क्या होती है? KSSATRIYAN क्षत्रिय, जिसको अपन वारियर बोलते हैं। वारियर की योद्धा, क्षत्रिय है ना। और एक होता है जो अपन ट्रेड करता है, वेरी उसको अपन बोलते हैं ट्रेडमैन। तो इन दिस सेकंड लाइन ऑफ द पॉइंट, फॉर द प्रीस्ट, द वॉरियर एंड द ट्रेडमैन एंड ऑल द 36 36 जातों का आपने डिस्कस किया है। 36 जातों का अलग अलग कर्मों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। आपने देखा होगा फॉर द प्रीस्ट पुजारी का कार्य के लिए, योद्धा का क्या कार्य है, ट्रेडमैन का क्या कार्य है। फॉर ऑल दी 36 कास्ट एलाइज आर स्पीकिंग ऑफ 36 जात, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे 36 कास्ट का व्यक्ति हो, उनका एक ही मोटो रहता है, स्पीकिंग ऑफ गॉड, भगवान की बात। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे मराठी हो, सबका एक ही एम या गोल है, वो क्या है? सीकिंग ऑफ गॉड। तो फिर भी हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान की तलाश में रहना चाहिए। We should not ask his son what which caste he belongs to। हमें ये नहीं पूछना चाहिए which caste he belongs to, वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो फिलोसॉफिकल आइडिया है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो एटीट्यूड है, बहुत ही नैरो माइंडेड। We are filled by a narrow thinking। हम एक संकीर्णता की क्या होने हैं। तो बच्चों हमें संकीर्णता से चकरना नहीं है। हमें किसी भी संत की, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो योद्धा हो, चाहे वो ट्रेडमैन हो, चाहे वो अदर कास्ट का हो, 36 कास्ट का हो, किसी से भी किसी का नहीं पूछनी चाहिए। 36 alike a seeking for God। It is but only to ask what he wants from maybe the barber has got God बारबर, चाहे नाई जाति का हो, चाहे चमार जाति का हो, एंड ए वस्त्रमैन, चाहे धोबी हो, चाहे धोबन हो, एंड का एक कारपेंटर, चाहे खाती हो, चाहे धोबी हो, चाहे खाती हो, चाहे नाई हो, चाहे 36 जात का हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबको क्या करना चाहिए? ऑल मोटो, ऑल गोल इज सीकिंग ऑफ गॉड। सबका एक ही उद्देश्य है, भगवान की तलाश। इवन रेदास, आपने रेदास का नाम सुना होगा। रेदास हु वाज ए शूमेकर, जूता जो बनाते हैं रेदास, जो नीची जाति के होते हैं। रेदास वीवर से प्रकार के दुल्हा, जो रेदास का नाम बहुत ए सीकर आफ्टर गॉड, और वो हमेशा भगवान के पीछे ही होते थे, उनकी तलाश कर रहे। ऋषि स्वपता एंड रेदास। कबीर is discussing the two famous and popular writers in this stanza, Vedas and Rishi Swata का एक टेनर ऑफ एनिमल स्किन, और ये स्वता जो ऋषि था वो इसमें इंक्लूड था, टेनर ऑफ एनिमल स्किन, जानवरों की चमड़ी होती ना, उसका कार्य क्या करता था। तो इनके बच्चों, इनके वर्क देखिए कितने नीचे हैं, बट दे आर वेरी पॉपुलर इन सोसाइटी, बट देयर रोल is only for seeking of God, because there is no difference between, there is no discrimination between upper caste and lower caste।
क्योंकि कबीर ने इस सोसाइटी के अंदर ऊंची जाति और नीची जाति के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन देखा, जिसके कारण ही उन्होंने इस कविता की क्या की, रचना की। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1440 के अंदर हुआ था। एंड ही वॉज एक्सपायर्ड एंड डाइड इन 1580। There was only 76 and 25 years old. But their message is very impressive in the society. We should also follow the rule of Kali. हमें भी इनके पद पर क्या करना चाहिए? स्वच्छता was a tenor by animal skin. Hindu and Muslim alike have achieved the end where there remains no mark of a distinction. हिंदू और मुस्लिम जो आपस में जाति को लेकर लड़ते हैं, तो उनके गुरु क्या हो गए थे? कन्वर्ट हो गए थे ना। तो यही इसके अंदर लिखा है, संक्षिप्त ब्रीफ इन थीम। अब मैं इसकी संक्षिप्त थीम पर देता हूँ। पोएम हैज कंप्लीटेड ओनली फॉर 10 लाइन, 8 and 10 लाइन विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। अब इसकी थीम क्या है? कबीर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ इंडियन सोसाइटी। कबीर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ऑफ इंडियन सोसाइटी विद एनलाइटन एंड रिफॉर्मेशन प्रोसेस इन द सोसाइटी। इन्होंने एनलाइटन किया है एंड रिफॉर्मेशन किया है प्रोसेस इन द सोसाइटी इन पॉजिटिव वे। He has a no negative way, he has properly positive way and presents the process of society, ताकि समाज आगे बढ़ सके। It is needed to ask the son which he belongs caste system. We should not ask a son which caste he belongs to. वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है, हमें कभी उसकी जाति ठीक होनी चाहिए। He wanted to reform the society. We can say that Kabir wanted that is the reformer of the caste system is not of a unit due to it people of the country lost much more things in the poet criticizes the mentality which strengthens and the caste system. Dominant classes always keep attention for the development of the growth of the established social system because it preserves the ideology. Society is civilized group. Society is civilized group which works for a common interest. But in the case of the Indian society, the spirit of integrated society had vanished. It's a pretty important line है, the integrated society had vanished. जो समाज के संगठन की जो ताकत थी ना, वो क्या हो गई है? गायब हो गई है। Indian society has divided into different castes. Very important line, आप लिखिएगा, Indian society has divided. Indian society has divided. जो भारतीय समाज है वो बढ़ चुका है into different castes, अलग अलग जातियों के अंदर मतलब क्या है? बढ़ चुके हैं। तो हमारी यूनिटी, एक कहावत है, यूनिटी यूनाइटेड की स्टैंड डिवाइडेड की फॉर्म। संगठन में तस्वीर तो अगर हम यूनाइटेड की स्टैंड है, संगठन है, तो हमारे पास पावर है। If we are divided, अगर हम डिवाइडेड है, तो every person can change या ग्रुप सोसाइटी, हर व्यक्ति हमारे पास क्या कर सकता है? सोच सकता है। ठीक है। अब इसके ऊपर और देखिए, कबीर जी में ये पढ़ दिए थे और कबीर का स्ट्रक्चर पढ़ दिया था, थीम भी कर दिया था, है ना। कबीर कंट्रीब्यूशन अदर रिलीजन, कबीर इज कंसीडर्ड टू बी ए forerunner of a Sikkim also. Some of his poetry was a, you know, include a Guru Granth Sahib. It is a religious book of the Sikh. Sikh के लिए भी उन्होंने किताब लिखी थी। In this poem, जात में कुछ हो सकता है, we can say that the another name which was said, जात में कुछ हो सकता है, Kabir says that we must not ask a son to which caste he belongs. It is only a useless and foolishness also if we are asking a person which caste he belongs to. This person is a foolishness, मूर्ख person होगा and useless person. ये केवल useless person है अगर if we are asking his caste, whether they are a Brahmin, Kshatriya and the tradesmen of other 36 castes, even of people of low castes like a barber, craftsman or a carpenter are living in the question of a Almighty God.
भगवान ही क्या है? ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओनली a person who is almighty. He has no difference between upper caste and lower caste. उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है बच्चों, चाहे अपर जाति का हो, चाहे नाई जाति का हो या बारह जाति का हो। कबीर has given the example of two sons, Reza and a shoemaker and cobbler of Sisi, Swapata, who was a trainer of an animal skin. Both of them always sought after God. Both of always sought after God. और ये दोनों जो कवि का वर्णन किया है, रेदा का और स्वपाता का, ऋषि का, ये दोनों लोग भगवान की क्या थे? तलाश में थे। Thus we can say Kabir was not a literate person, he was illiterate person. तो इसकी एक लैंग्वेज और स्टाइल क्या है? Although Kabir had no formal education, yes he was a great thinker. He had no formal education, but he was a great thinker. लेकिन उसकी सोच बच्चों कैसी थी? बहुत ही बड़ी थी। He was a great thinker and philosophical thinker. We can say that he was a great philosophical thinker, but he had no formal education in his life. This point is rich in thought. This point is rich in thought. ये कविता विचारों में बहुत ही कैसी है? Rich है. There is no rhyme scheme in the point, but it has a lyrical quality and can be said no music. Kabir's poetry is a music of our soul. The poem has the quality of a memorization. Thus, we can say that however we can say he has a philosophical idea in this poem. The language is common man's language. The poem which is used, this poem which is written in very simple language and common language, because he was a formal education, but his thought was very great. His Pandit or lyrical hangs them and people around him. He had a little knowledge of language and vision. He repeated himself in a many of his poems. और फिर भी उसने बहुत ही सिंपल भाषा में कविता में लिखकर और हमें एक फिलोसॉफिकल जो आइडिया दिए हैं, समाज को एक नया संदेश दिया है, जो समाज के लिए बहुत क्या है? शिक्षाप्रद है बच्चों। कीप प्रैक्टिस, स्माइल एंड अटेंड दिस क्वेश्चन। इसको अटेंड कीजिए क्वेश्चन। कबीर के इंट्रोडक्शन बताइए, कबीर के थीम बताइए पॉइंट की, और उसकी लैंग्वेज स्टाइल बताइए, उसके फिलोसॉफिकल आइडिया बताइए, उसका कंक्लूजन बताइए। कीप प्रैक्टिस, keep smile. Thank you everybody. See you again.